Hello students, in today's video lecture we will talk about the regulation and the secretion of hydrochloric acid inside of stomach. Before discussing the detail of the topic, that is peptic ulcer, given in the syllabus of B Pharmacy 6th semester pharmacology, I would like to mention the clear-cut concept of basics of GIT and the basics of gastric secretion, along with the what is the mechanism, that how does the hydrochloric acid releases from the parietal cell, that we will discuss in today's video lecture. And later on, it means the coming video lecture, in the next video lecture we will discuss the directly the drug acting on the used in a peptic ulcer disease. So in the basics of secretion and regulation, first, if we talk about the basics of gastrointestinal tract, क्योंकि हम अगर gastrointestinal tract की बेसिक्स को पढ़ते हैं, उसके एनाटॉमी को, उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और ओवरऑल ये आइडिया लगा ले जाते हैं कि हमारा जो एसिड का सिंथेसिस है इन द पैराइटल, फ्रॉम द पैराइटल सेल, वो किस तरीके से हो रहा है। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर हमको पेप्टिक अल्सर को पढ़ना है तो हमको एसिड के सिक्रीशन को कम करना पड़ेगा। यही वजह है कि हम इस बेसिक्स को पढ़ेंगे ताकि हम जब पेप्टिक अल्सर को ट्रीट कर रहे होंगे, इट मींस हम एसिड के रिलीज को किसी तरीके से बंद कर रहे होंगे, इनहिबिट कर रहे होंगे, कंट्रोल कर रहे होंगे, देन वी विल यूज द various steps that are involved in the synthesis of hydrochloric acid, so that if we inhibit those steps, then we will regulate the synthesis of hydrochloric acid as well as in peptic ulcer. So इस बोर्ड में, चूंकि बोर्ड अभी फिलहाल तो छोटा है और इस बोर्ड में चीजें छोटी छोटी लिखी ले हैं, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं भी कुछ बचने वाला नहीं है। आप पूरे वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। लाइक हम बात करें जीआईटी की, तो सबसे पहले अगर हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बात करें जीआईटी की, तो हमको लगता है कि जीआईटी का एक्चुअल जो रोल है, फंक्शन है, ओवरऑल फंक्शन है, वो क्या है? दो चीजें हैं। वो आपकी ओवरऑल फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये आपकी बेसिक्स हैं और ये आपका टू द पॉइंट टॉपिक है। इन टू द पॉइंट टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए जो एक भूमिका है वो यहां पर है। तो अगर हम जीआईटी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ जीआईटी, दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीआईटी? इट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इन द जीआईटी ट्रैक्ट देयर इज अ नर्वस सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड only, or you can say the restricted only up to the gastrointestinal tract। एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि जीआईटी में इंटीग्रेटेड होता है, इनर्वेटेड होता है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज एक्चुअली दैट इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स दैट released or regulate the function of gastrointestinal tract, specifically is called enteric nervous system. And enteric nervous system, the number of neurons present in the enteric nervous system is as equal. Some authors believes the number of neurons in the enteric nervous system that is present only up to the gastrointestinal tract, the number of neurons present here will be as equal as they are present in the spinal cord. मीन्स अगर इसको हम एक लाइन में डिफाइन करें तो एंटेरिक नर्वस सिस्टम उस सिस्टम को बोल रहे हैं, उन न्यूरॉन्स को बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को बोल रहे हैं जो कि जीआईटी में इनर्वेटेड हैं, और उनका जो सिक्रीशंस है दैट इज रेगुलेटिंग or modulating the activity of gastrointestinal tract, or we can say the different part that is present in the gastrointestinal tract, like large intestine, small intestine, stomach, pancreas and everything like. So this is what is enteric nervous system, how does it related with the spinal cord. Now we will slightly discuss the innervation and the hormones of GIT. As we have already discussed, the innervation means the integrated neuron. The collectively I was calling them enteric nervous system, and that neuron that was present in the enteric nervous system
how does they play their role in the GIT? As we know, the enteric nervous system neurons or hormones present in the gastrointestinal tract regulates the various part of the gastrointestinal, like smooth muscles. Means we can say the smooth muscle of all gastrointestinal tract is influenced by the enteric nervous system or hormones. So smooth muscle, blood vessels and glands, all these three things is modulated, or we can say the function of these three things modulated under the influence of enteric nervous system neurons and enteric nervous system, or in the hormones that is present in the GIT, gastrointestinal tract. तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होगा। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ओवरऑल किनको रेगुलेट करके हम अपने फंक्शन को अचीव कर रहे हैं। सॉरी, ताकि जब आप पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर के एजेंट्स को, तो वहां पे आपको बहुत आसानी होगी आपके कॉन्सेप्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प करने के लिए, बनाने के लिए, कि आप किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में स्मूथ मसल, ब्लड वेसल और ग्लैंड्स को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं ताकि हम एसिड के रिलीज को कंट्रोल कर सकें। तो अभी तक के बेसिक्स में इतनी बात है जो कि आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द न्यूरोनल कंट्रोल, as we have discussed, all the neuron collectively present in the GIT is called coming under enteric nervous system. In the GIT, if we microscopically we look at the layers present in the gastrointestinal tract, like then the gastrointestinal tract में जो layers होंगी वो कितनी, जैसे लेट सपोज ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, राइट, दिस इज योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ये जो पूरा सर्कमफरेंस है, ये पूरा जो सर्कमफरेंस है, दैट सर्कमफरेंस इज थिक, समवॉट इट इज थिक, एंड दिस थिक एरिया इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स, एंड दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, लाइक इफ वी टॉक अबाउट द टुवर्ड्स द ल्यूमेन, द इनिशियल लेयर इज म्यूकोसा। आपको इसके बिल्कुल बेसिक्स को समझना है, लेकिन अपने कोर टॉपिक में कंसेप्ट क्रिएट हो पाए इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। जो आपका न्यूरोनल कंट्रोल को किस तरीके से हम रिलेट करेंगे उसकी हम बात करेंगे। उसके लिए हमको पढ़ना जरूरी है कि आपके जीआईटी की जो थिकनेस है उसमें कितनी लेयर्स हैं और वो किस तरीके से हैं। ल्यूमेन की तरफ कौन सी है, जैसे अगर हम बात करें कि ये आपकी जीआईटी की लेयर है, राइट, तो अब मैं इसकी थिकनेस की इसकी बात कर रहा हूं, इस थिकनेस की। तो ये हमारा कौन सा साइड हो गया, अगर ये जीआईटी के बीच का स्पेस है तो ये हमारा ल्यूमेन हो गया, और ये आउटर सरफेस हो गया, इधर वाली सरफेस आउटर हो गई, और इधर जो ये सरफेस होगी इनर बाई, ये आपकी कौन सी हो गई, टुवर्ड्स द ल्यूमेन। इन अ सेम वे टुवर्ड्स द ल्यूमेन थ्रू आउट द जीआईटी देयर विल बी म्यूकोसल लेयर, देयर विल बी सब म्यूकोसल लेयर, देयर विल बी muscularis propria, and there will be serosa, or we can say the adventitia. So these four layers towards the lumen, apart from lumen, इस डायग्राम से आप इसको रिलेट कर सकते हो। मोस्ट इनर लेयर अंदर साइड कौन सी है, जस्ट म्यूकोसल लेयर। तो आपको ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं, देखिए जो अपना न्यूरोनल सिस्टम है, अगर आप कह लो इंटेरिक नर्वस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो इंटेरिक नर्वस सिस्टम में एक्चुअली दो प्लेक्सेस होते हैं। अब प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो ये न्यूरोनल म्यूरल प्लेक्सेस होते हैं। ये म्यूरल प्लेक्सेस क्या होते हैं, देखिए अगर प्लेक्सेस की हम बात कहीं पर कर रहे होते हैं और वास्तव में हम बात करते हैं एक्चुअल में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, तो प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो एज सेम एज इन गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। सेम उसी तरीके से हमारे इंटेरिक नर्वस सिस्टम में दो प्लेक्सेस होते हैं, और वो प्लेक्सेस कहां पर प्रेजेंट होते हैं वो समझाने के लिए आपको इस चीज को डिस्क्राइब किया गया है कि दैट म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपिया एंड सीरोसा और एडवेंटिसिया लेयर। जो सब म्यूकोसा लेयर होती है जस्ट बिलो द म्यूकोसा, दैट कंटेन्स अ प्लेक्सेस, एंड दैट प्लेक्सेस इज कॉल्ड मिसनर प्लेक्सेस, that contains called Meissner plexus. And in the same way the muscularis propria is also made up of two kinds of you can say the cells, like circular muscles,
longitudinal muscles. Circular muscle and longitudinal muscle. Circular muscle, it contains Auerbach's plexus that is also called Meinrich plexus. अब इनका रिलेशन किस तरीके से है, जीआईटी में किस तरीके से इन्वॉल्व है? देखिए, जहां कहीं भी अगर हम जीआईटी में प्लेक्सस की बात कर रहे हैं, सपोज करिए हमारा ये डायग्राम है, अब इसको अगर मैं, जैसा कि मैंने बोला कि ये आपका मिशनर प्लेक्सस है और ये ऑर्बैक प्लेक्सस है या माइंट्रिक प्लेक्सस है, इसकी प्रेजेंस है मस्कुलरिस प्रोप्रिया में और मिशनर्स प्लेक्सस की प्रेजेंट है सब म्यूकोसा में। तो ये प्लेक्सस एक्चुअली किस तरीके से, लाइक देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपकी ये कौन सी लेयर है, ये हमारी म्यूकोसा हो गई, ये हमारी सब म्यूकोसा हो गई, ये हमारी मस्कुलरिस प्रोप्रिया हो गई और ये हमारी हो गई सीरोसा, राइट। तो अब अगर हम बोल रहे हैं कि मिशनर्स प्लेक्सस सब म्यूकोसा में, तो इसके मायने क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? देखिए, प्लेक्सस का मतलब है कि आपका कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, मींस मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वहां पे होंगे। मींस जैसे अगर मैं सब म्यूकोसा में मिशनर प्लेक्सस की बात कर रहा हूं, तो अगर कोई न्यूरॉन्स जो प्लेक्सस है, उस प्लेक्सस के पहले जो न्यूरॉन होगा प्री गैंग्लिया न्यूरॉन होगा, और जो सेकंड जो ऑर्गन में इनर्वेटेड होगा, जो जिस ऑर्गन में आपको इन्फ्लुएंस देखना है न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, वो इनर्वेटेड ऑर्गन में होगा। सपोज करिए ये आपका स्टमक में है, तो इस गैंग्लिया के पहले प्री गैंग्लियोनिक फाइबर और ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर, इसी सेम चीज को जहां पे कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स निकल रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं प्लेक्सस। इस तरह के जो प्लेक्सस फॉर्मेशन है वो केवल दो लेयर्स में है, एक जो सब म्यूकोसल में है उसको हम बोल रहे हैं मिशनर प्लेक्सस, और सेम यही चीज जो मस्कुलरिस प्रोप्रिया में है उसको हम बोल रहे हैं क्या, ऑर्बैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस, जिसमें हम एक्चुअल में रिलेट कर रहे हैं कि हमारा इट मींस, अगर हम प्लेक्सस की बात बोल रहे हैं वेदर इट इज मिशनर्स और ऑर्बैक्स, देयर विल बी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर and after that plexus there will be post ganglionic fiber. Post ganglionic fiber will be innervated in that particular organ where we required some pharmacological effect. It means, let's suppose there is a preganglionic fiber and this is basically a cholinergic fiber. This cholinergic fiber preganglionic will release acetylcholine. Where does it releases? In the plexus. In the plexus it is released post acetylcholine, and in the post ganglionic fiber it also releases acetylcholine. तो अब पोस्ट गैंग्लियोनिक एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है, इट मींस वो ऑर्गन में एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहा है। लाइक इनकी जो ऑरिजिन है वो पहले है, राइट, स्पाइनल कॉर्ड से, और ये ओवरऑल जो प्लेक्सस क्रिएट कर रहे हैं वो इन पार्ट पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा यहां से बनेगा। तो आपको इस पर्टिकुलर प्लेक्सस को लेके उतना डेप्थ में नहीं जाना है, राइट, आपको बस इतना क्रिएट करना है, क्योंकि आप कई अगर हायर स्टैंडर्ड ऑथर को पढ़ते हैं तो आपके अगर इस रिलेशन में वो जीआईटी के रोल को मॉड्यूलेट करते हैं किसी फंक्शन को, तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि द मिशनर प्लेक्सस एंड द ऑर्बैक प्लेक्सस, वेयर डज इट लोकेटेड एंड हाउ डज इट actually what they are, and how the preganglionic fiber and postganglionic fiber related to this plexus, and what are the transmitter and the secondary mediator that releases in this Meissner plexus and Auerbach plexus. As I earlier told, there may be the sympathetic supply or parasympathetic supply, means there may be acetylcholine and norepinephrine as well. तो ये आपका न्यूरोनल कंट्रोल है जो कि इस तरीके से यहां पे कंट्रोल होगा, न्यूरल कंट्रोल ओवरऑल, और ये पूरी जो है ये पूरे थ्रू आउट द जीआईटी होगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो ये मिशनर प्लेक्सस और ऑर्बैक प्लेक्सस की हमने बात की, न्यूरोनल कंट्रोल किस तरीके से होता है, कहां पे न्यूरॉन प्लेक्सस बनाते हैं और किस तरीके से इफेक्टर ऑर्गन में अपना इफेक्ट देते हैं। प्लेक्सस को और न्यूरॉन्स को ओवरऑल पूरे प्लेक्सस की अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि प्लेक्सस ये कहां पर है, ये जीआईटी में है, ये और कहीं नहीं है स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो अगर हम इसकी एक ब्यूटीफुल डेफिनेशन डिफाइन करें कि व्हाट इज एंटेरिक नर्वस सिस्टम, देन वी विल से द प्लेक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, द प्लेक्सस रिसीव्स व्हाट, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सप्लाई, ये तो आपको क्लियर ही है। और
पैरासिम्पैथेटिक मींस एसिटाइलकोलिन, सिंपैथेटिक मींस इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। न्यूरॉन्स विद इन द प्लेक्सस कॉन्स्टिट्यूट, जो प्लेक्सस के अराउंड न्यूरॉन्स जो बन रहे हैं, ओवरऑल ये पूरे प्लेक्सस पूरे तरीके से जीआईटी में थ्रू आउट द सबम्यूकोसा एंड मस्कुलरिस प्रोप्रिया है। तो पूरा थ्रू आउट जो ये इनमें प्लेक्सस बन रहे हैं अराउंड द न्यूरॉन, उनको कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। मींस न्यूरॉन्स विद इन द प्लेक्सस constitute enteric nervous system, and I hope that this is the beautiful definition of enteric nervous system. As I earlier told, the enteric nervous system itself releases what acetylcholine and norepinephrine, but also there will be so many secondary mediators or supporting elements that also releases from the enteric nervous system is 5-HT, purines and nitric oxide. Means we can say that 5-HT, serotonin, purines and nitric oxide also is a part of, or we can say the releases from the enteric nervous system. So I hope कि यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि apart from these enteric nervous system overall regulation, what we have talked up to now, that the different layers and the a definition of enteric nervous system, plexus, all the enteric nervous system also have the sensory neurons. How does the sensory neurons produce their action? Sensory means they are capable of sensing the mechanical and chemical changes in the throughout the gastrointestinal tract. Means let's suppose this is your stomach. This is your stomach, and there you have taken a food, and that food is apply a pressure. What pressure? That mechanical pressure applies towards the stomach muscles, and that stomach muscles as have the sensory neurons that is connected with the central nervous system, or we can say that is connected with the enteric nervous system, so that the sensory neuron also modulated the function of GIT because they sense the mechanical or chemical changes throughout the gastrointestinal tract. So my point is that कि enteric nervous system also have, student also have to understand that the enteric nervous system also have the sensory receptors as well, sensory neurons and receptors as well. So this is the all about the neuronal control. How does the neurons influence throughout the gastrointestinal tract? Influence the gastrointestinal tract. Now if we talk about the how does the hormones modulate the function of gastrointestinal tract, then the in the GIT there are so many hormones, like some releases from the endocrine glands, like endocrine secretions or the paracrine secretion. What is paracrine secretion? Paracrine secretion is that, let's suppose there is a substance that releases from this cell and influencing this nearby cells. So this is the paracrine secretion. Most of the time neurotransmitter release also considered as paracrine release. So the hormones, there are various hormones that also control the GIT in the endocrine and paracrine manner. So this is neuronal control, right? And this is hormonal control. Now we will talk a little bit about gastric secretion, because we are going to create a concept about the synthesis of HCl in the parietal cell, and how does the HCl secretions is modulated by the various different secondary factors. We will later on we will discuss in this today's video lecture. So gastric, if we talk about the basics of gastric secretion, so students should know that approximately 2.5 liter per day, 2.5 liter per day from gastric mucosa. Gastric secretion कहाँ हो रहा है? Gastric mucosa से. Gastric mucosa means that was earlier first layer towards the luminal side, mucosa. There will be gastric cell, and that will release the gastric secretion. Gastric secretion also have pepsinogen, hydrochloric acid, intrinsic factor in their components. Pepsinogen is releases from the stomach chief cell or peptic cell. इसमें बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को रहता है कि सर HCF को चीफ सेल में बोल दिया, पेप्टिक सेल में बोल दिया.
या पेप्सिनोजन को पैराइटल सेल में बोल दिया, तो आपको बहुत इसको क्लियर रखना है कि पेप्सिनोजन इज रिलीजेस फ्रॉम चीफ सेल और पेप्टिक सेल, while the HCl and intrinsic factor releases from parietal cell or oxyntic cell that present on the stomach. There will be the presence of bicarbonate, carbonic acid, or we can say the bicarbonate ion due to the presence of bicarbonate ion in the mucous layer. Bicarbonate naturally present in the mucous layer, and as this is basic in nature and this is responsible for maintaining the pH in the mucosa in the uppermost part is approximately about 6 to 7 range, pH of 6 to 7 range due to the bicarbonate ion, because bicarbonate ion and the mucus that releases from the mucosa layer, both they form gel like structure, and that gel covers the mucous layer, and due to the covering of this layer, the pH, the region of the pH of that particular region in the mucous layer, the region lies in between 6 to 7. But because the parietal or oxyntic cell releases HCl, and this is because the region of the parietal cell pH is approximately 1 to 2, lies between 1 to 2 range. So this is all about the basics of GIT you should know before studying the detail of HCl secretion and regulation. तो आपको ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे वन बाय वन. अब हम सिंपल देखते हैं कि किस तरीके से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एवरी स्टूडेंट शुड नो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स through which the hydrochloric acid or HCl synthesized in the parietal cell. So I will make a clear concept. So this black color box is representing the parietal cell. As we have studied, the parietal cell or oxyntic cell is responsible for releasing hydrochloric acid and intrinsic factor. As the concern we are talking about HCl, so we will talk about the HCl in this video lecture. So this parietal cell or oxyntic cell, how does it releases HCl in the lumen? ल्यूमेन में HCl रिलीज करेगा, वो किस तरीके से करेगा? लेट सपोज एक कॉन्सेप्ट बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि कई बार स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देखते हैं और रिलेट नहीं कर पाते कि ये डायग्राम एक्चुअली में किस सेक्शन से लिया गया है. लाइक मैं अगर बात करूं तो आपका ये पेराइटल सेल है, इसमें क्लियर होगा कि पेराइटल सेल, लेकिन अगर मैं इधर ल्यूमेन दिखा रहा हूं और इधर प्लाज्मा दिखा रहा हूं तो इसके मायने क्या है? देखिए कोई भी सेल्स होगी ओवरऑल बॉडी में थ्रू आउट द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. तो अगर यहां पे अगर मैं ब्लड वेसल्स बना दूं, अगर ब्लड को दिखाऊं तो इट मींस यहां पे क्या है? प्लाज्मा है. तो प्लाज्मा इसलिए यहां पे लिख रखा है, प्लस जब ये जो बीच वाला स्पेस है ल्यूमेन, उस ल्यूमेन स्पेस को यहां पे दिखा रखा है. मींस आपके कोई भी सेल्स हैं उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है. उस एक नेटवर्क को यहां हमने प्लाज्मा दिखाया, उसके जस्ट सेल को, जैसे कि आपने सपोज करिए कि यहां पे ये ब्लड वेसल्स हैं, इसको और क्लियर हम कर देते हैं. ये आपकी ब्लड वेसल्स है. अब मैं ये सपोज करिए आपकी ये है आपकी ब्लू कलर पेराइटल सेल. तो पेराइटल सेल का ये पूरा डायग्राम है, इसको एक्सप्लेन किया है ब्लू कलर की लाइनिंग को. बगल में इसको मैंने प्लाज्मा दिखाया और इस एरिया को मैंने इधर दिखाया ल्यूमेन. तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को कट करके मैंने इसको यहां पे मैग्नीफाई कर दिया. तो आपको ये चीज अभी होप कि समझ में आ गई होगी. अब हम बात करते हैं कि जैसे किस तरीके से HCl की सिंथेसिस होती है. देखिए ये आपकी पेराइटल सेल है. As we know that in every cell there is a presence of water and carbon dioxide gases because the cellular respiration all the time will take place. CO2 and H2O in the presence of an enzyme which is carbonic anhydrase combines and form H2CO3 carbonic acid. Eventually, again in the presence of carbonic anhydrase, the H2CO3 degrades into HCO3 minus and H plus. I hope कि आपको ये क्लियर होगा.
इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. एवरी सेल हैव द सेलुलर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Carbonic anhydrase combines them and form H2CO3. H2CO3 again carbonic anhydrase is responsible for degradation as well. So it degrades H2CO3 into SCO3 minus and H plus. Now this SCO3 minus in these all reaction taking inside the parietal cell or oxygentic cell. Now this SCO3 minus is taken up by the antipode. अब आपको कुछ पॉइंट्स यहां पे याद करके रखने हैं, समझने हैं उसको कॉन्सेप्ट. This is representing the antipode. This is representing antipode. What is the function of antipode? Antipode क्या करेगा? एक आयन को सेल से पकड़ के अंदर लाएगा, तो एंटी अपोजिट है, एक आयन को पकड़ के बाहर ले जाएगा, बैलेंसिंग करेगा. तो antipode is actually energy dependent mechanism. So once the SCO3 minus or H plus is synthesized under the influence of carbonic anhydrase, this SCO3 minus synthesized or formed SCO3 minus is taken up by the antipode present in the plasma sites against the luminal side, or we can say the basolateral sides of this parietal cell, and takes the SCO3 minus from inside and put it towards the plasma. And this is antipode. So in parallel to this takes the chloride ion from the plasma, or you can say from the blood, and put it inside the parietal cell. तो इस तरीके से आपकी एक स्टेप आपकी क्लियर होगी. एज वी नो, बिकॉज वी आर स्टडिंग द synthesis of hydrochloric acid, means HCl. So what we have taken? We have taken the Cl minus. Now we have Cl minus chloride ion inside the parietal cell. ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई, ये आ गई. This is energy dependent mechanism. Now this chloride ion is eventually travels and moves towards the luminal sites, but this luminal sites there will be, as there was present, there were क्या present था यहाँ पे basolateral side पे? Antipode. But this time there will be a sympode. Antipode opposite side में दोनों आयन को ले जाएगा और sympode एक साइड में ले जाएगा. देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझने का है, क्योंकि यहीं पर हम बात करेंगे उस मेन हीरो की, आप कह लो, जो कि प्रोटॉन पंप है, जिसको आप थ्रू आउट द पेप्टिक अल्सर बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रग कई बार ब्लॉक करने की बात करोगे, प्रोटॉन पंप के इनहिबिशन की बात करेंगे. तो उसको आपको यहां पे बहुत अच्छे से पॉइंट समझ लेना है, ताकि आपको ये डायग्राम का 60% आपको क्लियर हो जाए. Chloride ion eventually taken outside in the towards the lumen with the help of sympode. So sympode also takes the potassium ion from inside and put it in the luminal side. Put it in the luminal side. As we know that every cell have the potassium ion maximally inside. Normally सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है और सोडियम बाहर ज्यादा होता है. तो उसी कंसेप्ट को, हाइपोथेसिस को अगर वी रिलेट विद दिस डायग्राम, देन द क्लोराइड आयन सिंपोटिकली टेकन अप बाय द सिंपोर्टर towards the luminal side. In the same way, the highly present potassium ion is also taken by the sympode and put it towards the luminal side. Am I clear? As we are related with the concern with the HCl, there is no role of potassium ion. Then there will also be a proton pump. There will also be a proton pump, and the function of proton pump, because the proton pump present over the parietal cell towards the luminal side, is actually dependent on actually perform their action by in a energy dependent mechanism, or we can say the proton pump is ATP dependent mechanism. So as we know, if we talk about the ATP dependent mechanism, अगर हम energy dependent mechanism की बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बात कर रहे हैं. तो अब यहां पे कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा थी? पोटेशियम की. हमने पहले बोला था कि पोटेशियम की नॉर्मली नेचुरली सेल के अंदर ज्यादा होती है. तो अगर ये प्रोटॉन पंप है तो नेचुरली क्या करेगा? पोटेशियम को बाहर से क्या लाएगा? अंदर ही ज्यादा है, अंदर लाएगा, क्योंकि हम एनर्जी का यूज कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन पंप दैट इज एनर्जी डिपेंडेंट पंप. तो ये आपका क्लियर होगा कि ये पोटेशियम यहां से इस पंप के थ्रू अंदर आएगा. But in a same way, because it is proton pump,
H plus ion that was earlier synthesized during the synthesis of SCO3 minus along with the SCO3 minus, that H plus ion is parallelly uptaken by this proton pump and that takes the H plus ion, put it in the luminal side, and as it throws H ion from outside, and we have already present Cl minus outside in the luminal side, eventually they combine, plus charge and minus charge combine with each other and form hydrochloric acid. So this is proton pump. Proton pump means taking the proton outside. Proton pump means pumping a proton outside of the cell, taking potassium inside, and this is energy dependent mechanism, right? So this overall mechanism is responsible for synthesis of hydrochloric acid. अब as soon as these mechanism will processed, जितनी ज्यादा ये मैकेनिज्म स्टेप्स एक्टिव होंगे उतनी ज्यादा देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो आपने क्या करना है, आपने इस, चूंकि इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर एज वी विल टॉक अबाउट द पेप्टिक अल्सर ट्रीटमेंट, इन अ पेप्टिक अल्सर देयर विल बी एलिवेटेड लेवल ऑफ HCl, सो वी विल मिनिमाइज द लेवल ऑफ HCl बाय इनहिबिटिंग दीज स्टेप, एंड बाय इनहिबिटिंग द वेरियस स्टेप्स वी विल यूज वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रग्स एज वेल. सो ये आपका एक सिंपल सा डायग्राम, बिल्कुल क्लियर कट ट्रांसपेरेंट डायग्राम है कि आपका HCl की सिंथेसिस किस तरीके से हो रही है. तो आई होप कि आपकी पेराइटल सेल में ये आपको क्लियर होगा. नाउ एज जो कि ज्यादातर बी फार्मेसी का बच्चा केडीटी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसको मेरा पर्सनल सजेशन है कि केडीटी को छोड़ के, केडीटी अपने आप में एक थर्ड स्टैंडर्ड बुक है, आप और भी फॉरेन ऑथर को पढ़िए, लाइक रैंगेंडेल को पढ़िए, आप गुडमैन गिलमैन को पढ़िए, तो कई बार आपका कंसेप्ट डायग्राम को लेके भी बहुत डिफरेंट सा बनने वाला होगा, बहुत चीजें डिफर करेंगी, क्योंकि अब ज्यादातर बच्चे केडीटी के ही पढ़ते हैं. उसकी वजह क्या है कि केडीटी, कई बार केडीटी का प्रचलन है कि केडीटी पढ़ना है, लेकिन कई बार एक्चुअल क्या है कि पढ़ने वाले लोगों की ही कमी है. तो केडीटी पढ़ना है, एक बार अगर कहीं से हवा चल गई तो बस केडीटी ही पढ़ना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. तो उसको ध्यान में रखते हुए डायग्राम मैंने केडीटी का ही बनाया है ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, आसानी से रिलेट कर लें. तो ये देखिए आपका HCl का ये चीज पूरा आपका क्लियर है कि पेराइटल सेल में HCl किस तरीके से बन रही, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. अब हम बात करते हैं कि हमने क्या बात करी, यहां पे हमने रिलेट किया सिक्रीशन को HCl के. अब हम बात करेंगे कि HCl की जो सिंथेसिस है वो रेगुलेट कैसे हो रही है, मतलब उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसको इनहिबिट करने का काम कर रहे हैं. तो देखिए ये जो रेड कलर से आपका ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये आपका दिखा रहा है स्टमक के ल्यूमेन को. लेट सपोज आपका ये स्टमक है, राइट. तो ये जो बीच का स्पेस है ल्यूमेन, ये बीच का स्पेस ये वाला है, और ये जो लेयर है इसको थिक किया गया है इस तरीके से, ये, ताकि बीच में क्या रिएक्शन चल रही है उसको आसानी से दिखाया जा सके, और बीच के ल्यूमेन में जो HCl सिंथेसिस होगा उसको यहां पे दिखाया जा सके. बीच के ल्यूमेन में मींस ये वाला HCl जो ल्यूमेन यहां पे बनेगा, और ये पेराइटल सेल कहां पे प्रेजेंट होगी, यहां कहीं पे. तो आप ये डायग्राम रिलेट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है. अब हम इसमें इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करने वाले कि पोटेशियम का यहां किस तरीके से दिखेगा, क्लोराइड, क्योंकि हम यहां बहुत क्लियर इसको पढ़ चुके हैं, और इसकी रेलेवेंसी जो रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं उसकी इनसे ज्यादा यहां पे नहीं है. तो देखिए नॉर्मली इफ वी टेक द फूड, हम अगर कोई फूड लेते हैं, किस तरीके से HCl की सिंथेसिस को हम रेगुलेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं. अगर हम फूड लेते हैं, यहां से स्टेप हमारे स्टार्ट है, पॉइंट वाइज कैसे आगे बढ़ना है ये भी बच्चों को पढ़ना एक चैलेंज होता है. तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे ताकि आपका पूरा मैकेनिज्म रेगुलेशन का क्लियर हो जाए, उसके लिए आप स्टार्ट करेंगे. एज वी टेक द फूड दैट इज सेंस्ड बाय, कि वी हैव टेकन द फूड दैट इज सेंस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, hypothalamus, and in the central nervous system there will be a neuron that is vagus neuron. That neuron is stimulated and release what, acetylcholine in the gastrointestinal tract, because cholinergic neurons are also present in the enteric nervous system, in the Auerbach's and Meissner plexus. So when we take the food that is sensed by the vagus neurons, and the vagus neurons ultimately responsible for release of acetylcholine in the gastrointestinal tract, क्योंकि वेगस न्यूरॉन की इनर्वेटेड GIT में भी होते हैं acetylcholine. That acetylcholine perform two action, either it stimulate gastrin hormone, I hope कि आपको क्लियर होगा, gastrin hormone, or it stimulate or it binds to their receptor,
मस्कैरिनिक रिसेप्टर। ये आपका क्लियर हो गया। मींस आपका फूड आया, फूड ने आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट किया, वेगस नर्व स्टिमुलेट हुई, एसिटाइलकोलिन का रिलीज हुआ। एसिटाइलकोलिन दो तरीके से बाइंड होगा, आइदर ये गैस्ट्रिन हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, और गैस्ट्रिन हार्मोन को एक्टिवेट करने के बाद ये क्या करेगा, मींस गैस्ट्रिन हार्मोन के ज्यादा से ज्यादा सिंथेसिस को एक्टिवेट करेगा, और क्या करेगा, ये मस्कैर अपने जाके रिसेप्टर पे बाइंड होगा। बहुत सिंपल है। तो जहां जहां पे इसके रिसेप्टर होंगे वहां वहां पे बाइंड होगा। अच्छा, इसके रिसेप्टर कहां कहां पे हैं? एक तो मास्ट सेल पे है। मास्ट सेल मींस आप कह सकते हो मिलेनोसाइट सेल्स, जो कि हिस्टामिन का रिलीज करेगी, क्योंकि हिस्टामिन भी अपने आप में बहुत बड़ा सेकेंडरी मीडिएटर है जो कि स्टमक में एसिड के रेगुलेट करता है। जैसे कि हमने ये कहा था पैराक्राइन मैनर, हमने कहीं पैराक्राइन मैनर की बात की थी, तो हिस्टामिन बहुत इंपॉर्टेंट है इफ वी टॉक अबाउट द स्टमक। तो फूड स्टिमुलेशन ऑफ सीएनएस, वेगस, एसिटाइलकोलिन, गैस्ट्रिन स्टिमुलेशन, मस्कैरिनिक रिसेप्टर बाइंडिंग। अब ये क्यों बना रखा है ब्लड वेसल्स? बिकॉज गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन दैट इज रिलीजेस फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड through the blood it reaches, and once it is reaches through the blood it travels, and once it is reaches around the stomach or in the stomach, the acetylcholine also sensitize this gastrin hormone. Gastrin hormone this binds to their gastrin receptor present on the parietal cell. This is what parietal cell. तो gastrin hormone activated with the acetylcholine and binds with their gastrin hormone receptor present on the parietal cell. Number 1. Number 2, gastrin hormone also binds with their receptor that is also present on melanocytic cell. Means gastrin receptor is present on the parietal cell as well as melanocytic cell. As I was earlier told, मैंने पहले ही बताया कि यहां पे और कौन सा रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो बात यहां तक आ गई है कि गैस्ट्रिन हार्मोन मेलानोसाइटिक सेल पे बाइंड होगा अपने रिसेप्टर से, और वहां पे जब ये अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे दे विल सेंसिटाइज द मेलानोसाइटिक सेल टू रिलीज हिस्टामिन। बोथ acetylcholine as well as gastrin binds to their specific receptor present in the melanocytic cell and responsible for the release of what, histamine, and histamine binds with the H2 receptor present on the parietal cell. Number 2. Number 3, यहां पे स्टाइलकोलिन को दिखा रखा है, चूंकि ये डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलिए यहां अलग से लिख रखा है। बात वही है, फ्रॉम द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग या तो आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व देयर विल बी रिलीज ऑफ स्टाइलकोलिन एंड दैट बाइंड्स विद देयर रिसेप्टर दैट इज प्रेजेंट ऑन द मेलानोसाइटिक सेल एज वेल एज प्रेजेंट ऑन द पैराइटल सेल M3 रिसेप्टर। अब जब ये तीनों अपने अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे तो दे विल स्टिमुलेट मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड गैस्ट्रिन रिसेप्टर, दे इन्वॉल्व्ड इन द स्टिमुलेशन और वी कैन से द रिलीज ऑफ कैल्शियम and both of these calcium goes towards the hydrogen potassium ATPase pump, this hydrogen potassium ATPase pump, and once the calcium reaches to this pump become what, activated, and this activated pump synthesize more and more what, HCl, because this pump throws more and more H ion in the lumen, and there is a chloride ion, and they will combine and form HCl. Means more and more gastrin will release, more and more histamine will release, more and more acetylcholine will binds to their receptor present on the parietal cell. They will ultimately stimulate the sodium proton pump, and that leads to the formation of HCl in the lumen of the stomach. So, and side by side there is a prostaglandin, that is PGE2, that actually inhibit this gastrin hormone. अगर गैस्ट्रिन को इनहिबिट करेगा इट मींस HCl की सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर रहा है, क्योंकि इनडायरेक्टली गैस्ट्रिन इन्वॉल्व है HCl के सिंथेसिस में, और दिस इज आल्सो बाइंड्स टू देयर PGE2 का और रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है पैराइटल सेल में जिसका नाम होता है EP3 रिसेप्टर से जब प्रोस्टाग्लैंडिन बाइंड होगा तो वो साइक्लिक AMP को इनहिबिट करेगा, वो साइक्लिक AMP को इनहिबिट करेगा जिसको H2 रिसेप्टर हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद ज्यादा से ज्यादा बना रहा था। तो जब वो साइक्लिक MP नहीं बनेगा, कैल्शियम नहीं बनेगा, तो HCl की सिंथेसिस नहीं होगी। इट मींस अगर हम ये चीजें रिलेट कर रहे हैं, फाइनली अगर हम कंक्लूडिंग रिमार्क देते हैं तो वेदर इट इज एसिटाइलकोलिन और हिस्टामिन और गैस्ट्रिन, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग ऑफ
higher synthesis of HCl, but PGE2 analogs, or we can say the PGE2 is responsible for inhibiting the HCl by inhibiting the cyclic AMP or inhibiting the gastrin receptor to binding with their receptor present on the melanocytic cell, means ultimately release of histamine will be inhibited. So this diagram, अब जो यहां पे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है इसको भी आप देख लीजिए, M3 कैल्शियम को रिलीज करके प्रोटॉन पंप पे अपने एक्शन दे रहा है, गैस्ट्रिन कैल्शियम को रिलीज करके दे रहा है, H2 CAMP और कैल्शियम को रिलीज करके दे रहा है, और CAMP इनडायरेक्टली ये भी इन्वॉल्व है कि गैस्ट्रिन के इफेक्ट को बढ़ाएगा और M3 के इफेक्ट को बढ़ाएगा। तो ओवरऑल अगर आप लेट सपोज आप कोई ड्रग ऐसी लेते हैं जो कि एसिड को इनहिबिट कर रही है, मान लीजिए कोलिनर्जिक है, तो कोलिनर्जिक सिर्फ इसको इनहिबिट कर रही है। अगर हम लेते हैं गैस्ट्रिन इनहिबिटर तो वो इसे यहां पे इनहिबिट करेगा। अगर हम H2 एंटागोनिस्ट लेते हैं तो यहां पे इनहिबिट करेगा। अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लेते हैं तो इस प्रोटॉन पंप को ही बंद कर देंगे। इट मींस ये प्रोटॉन पंप H धनायन ही नहीं दे पाएगा अंदर, तो आपकी HCl की सिंथेसिस बिल्कुल ही नहीं होगी। तो इसीलिए हमारी जो बेस्ट ड्रग होती है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, तो वो हम लेटर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका ओवरऑल ये जो डायग्राम है जो कि केडीटी में गिवन है, अकॉर्डिंग टू केडीटी, ये आपका डायग्राम और आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से ये रेगुलेट हो रहा है, कैसे एसिड रिलीज हिस्टामिन से रेगुलेट हो रहा है, कैसे एसिड रिलीज एसिटाइलकोलिन से रेगुलेट हो रहा है, कैसे एसिटाइलकोलिन गैस्ट्रिन को इफेक्ट दे रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन को, कैसे वो मेलानोसाइटिक सेल में भी उसके रिसेप्टर प्रेजेंट हैं एसिटाइलकोलिन के, तो वहां से कैसे हिस्टामिन का रिलीज बढ़ रहा है, फूड किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है। सो दीज ओवरऑल मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर towards they will make a very clear concept further if you study the peptic ulcer drugs। तो आपका ओवरऑल ये जो पूरा एक लेक्चर है ये सिर्फ इसलिए बताया गया है ताकि आप जब पेप्टिक अल्सर्स की ड्रग को पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर में जो भी ड्रग हम पढ़ेंगे वो इनके कई स्टेप्स को ब्लॉक हो सकता है। एंटी कोलिनर्जिक ले लें तो इसको बाइंड ना होने दे, एंटी हिस्टामिनिक ले लें तो यहां पे बाइंड ना होने दे हिस्टामिन को। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ले लें तो इसको ज्यादा स्टिमुलेट करें क्योंकि ये इनहिबिट कर रहा है H2 को। अगर हम गैस्ट्रिन को इनहिबिट करें तो गैस्ट्रिन को यहां पे हम ब्लॉक कर देंगे ताकि अपने रिसेप्टर से बाइंड ना हो। अगर हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेंगे डायरेक्ट इस प्रोटॉन पंप में ड्रग को बाइंड करेंगे, इनहिबिट करेंगे, मींस ओवरऑल HCl की सिंथेसिस ल्यूमेन में नहीं होगी। सो दिस ये आपका मस्ट है कि आपको आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक कॉन्सेप्ट आपका जैसे ऑर्बैक्स क्या है, माइंट्रिक प्लेक्सस क्या है, कई बार बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, नाम को सुन के ही लगता है कि अरे ये चीज बहुत ज्यादा टिपिकल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस एक बार वीडियो लेक्चर को देखना है और इसका आपका कंसेप्ट इसको फ्रेम करके अपनी नोट्स को बना लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी अगर क्वेरीज रहती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और प्लीज हिट द लाइक बटन। और अपने फ्रेंड्स को और भी जो आपके डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो भी अदर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आप प्लीज उनसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आप बच्चों तक एक अच्छा कॉन्सेप्ट पहुंचा सकें। और कई बार मेरा भी वीडियो बनाने का पर्पज इतना होता है, पर्पज इतना सा है कि आप जो बच्चों में एक जो मींस पढ़ने की एक वो कहते हैं आप जैसे कह लो कि एक इंटरेस्ट, तो बच्चे को जब आप कोई चीज ट्रांसपेरेंट बताते हैं तो बच्चे का बट ऑब्वियस सा है कि उसको इंटरेस्ट बनना ही बनना है। और ट्रांसपेरेंट कैसे बताना है टीचर के लिए ये चैलेंज का बात है, जो कि मेरे लिए चैलेंज है और भी टीचरों के लिए चैलेंज है। तो कई बार मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आपको जो मैं बता रहा हूं, आई होप कि आपको ये चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही होंगी। तो आप अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे तो उनको भी ये चीजें शेयर होंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आई होप कि अब इसमें कुछ रिमेनिंग आई थिंक नहीं रह गया है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। थैंक यू वेरी मच।